हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए के रामानुजन का पोएम ए रिवर। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे ए रिवर रिटन बाय ए के रामानुजन। ठीक है, उससे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं, पोएट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बोर्न डेट आप देखो 16 मार्च 1929 और डाई डेट है 13 जुलाई 1993। ठीक है, ये एक इंडियन पोएट थे, स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर का, और यहाँ तक कि वो लिंग्विस्ट भी थे। ठीक है, रामानुजन वाज आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे रामानुजन। रामानुजन वाज अ पोएट, स्कॉलर, लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट, फोल्कलोरिस्ट और ट्रांसलेटर एंड प्ले राइटर। ठीक है, तो ये थे, फुल नेम है अतिपाति कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, उनके कुछ वर्क्स रहे हैं, फेमस वर्क्स रामानुजन सेकेंड साइट, द कलेक्टेड पोएम, द अस्ट्री अस्ट्रीडर्स, और नेक्स्ट है स्पीकिंग ऑफ शिवा, और नेक्स्ट है हाइमन्स फॉर द ड्राइंग, और नेक्स्ट है फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स रहे हैं, नोटेबल वर्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इस पोएम का जो है समरी डिस्कस करेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएम अ रिवर इज रिटन बाय ए के रामानुजन, हु इज अ ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएट, प्रोफेसर, ट्रांसलेटर, प्ले राइटर एंड अ स्कॉलर। ठीक है, ही रोट इन बोथ लैंग्वेज, English and Kannada. He was awarded with Padma Shri in 1976 and also the Sahitya Academy Award posthumously in 1999 for his literary works. Ramanujan published two volumes of poems, The Striders and The Relation. The poem A River appeared in The Striders in 1966. A poem A River is about a river Baikai which flows through the city of Madurai, ठीक है, which is situated in Tamil Nadu. It is a holy city full of temples and poets. ठीक है, the poets of ancient times as well as modern times have written poems on the city and her temples. ठीक है, they have also written on the river and flood. Ramanujan first talk about the beauty of the river and then tells how it killed people. The poem has been divided into 4 stanzas and each stanza has a different line length. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेंजा में आते हैं। इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज मदुराई इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड मैनी पोएट्स राइट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द सिटी, इट्स टेम्पल्स एंड इट्स रिवर विच ड्राइज अप, क्या हो गए हैं, सूख गए हैं, मेकिंग द सैंड विजिल, और केवल वहाँ पर बालू ही दिख रहे हैं। In the summer, the water flows in a small streams. As the water flows in a small streams, the sand looks like ribs of human. ठीक है, ribs of human, तो वैसे दिख रहे हैं। In addition to the sand, there are a straw and women here under the bridges having rusting bars which obstruct the free flow of water. There are also wet stones which are shining and look like sleeping crocodiles, and those which are dry seem to like water buffaloes without hair relaxing in the sun. However, other poets have written only about 2 seasons, that is summer and raining, for describing its beauty. They have not brought to their verses what loss has been inflicted on the people because of raining season. ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेंजा था। अब यहाँ से सेकंड स्टेंजा शुरुआत होता है। तो सेकंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ही हैज सीन दैट इंसिडेंट विच देयर वाज अ फ्लड, इट आल्सो कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, a pregnant woman and a couple of cows which were named Gopi and Brinda. Poet further says the new poet and the old poets, no one ever talked about the pregnant woman. The poet imagines that the twins were
kicking at the wall to escape but couldn't and were ultimately drowned to death with the mother. The other poets never brought this tragic incident to their poems. In the last stanza, according to the poet, the river is poetic and can be romanticized only once in year, and then in just half, for it takes away three houses, a couple of cows, and a pregnant woman who was expecting twins having fair bodies and also was thinking of having diapers of different colors so as to distinguish between them. In the last stanza, thus compares the contrast the writing of the poet himself and other poets of his age. All the other poets try to praise the beauty of the river, and on the other hand, the poet himself makes a balance between the beauty and the losses inflicted on the people by it. Thus, the poem A River shows the inattentive attitude and the complete unconcern of the city poets, both the old and new, towards the tragic situation of human suffering and fertility. ठीक है, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है यहाँ से शुरू करते हैं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या होता है? तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में इस पोएम का जो है स्ट्रक्चर, स्टाइल लिखेंगे, सिंबोलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है इसमें आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ऊपर लिखना है कि A.K. Ramanujan's poem A River is a powerful critique of the traditional and classical approach of poets who glorify nature and natural phenomena. ठीक है, without acknowledging the harsh realities faced by the ordinary है ना, by ordinary people, the poem written in free verse explores the indifference of poets towards human suffering, especially during natural calamities like floods. ठीक है, पोएम की थीम की बात कर लेते हैं। सेंट्रल थीम ऑफ पोएम ए रिवर रिवॉल्व्स अराउंड द कैलस एटीट्यूड ऑफ बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न पोएट्स। ठीक है, तो ये इसके जो है सेंट्रल थीम रहे हैं। अब जो है पोएटिक टेक्निक की बात कर लेते हैं इस पोएम की। तो इस पोएम की पोएटिक टेक्निक, रामानुजन एम्प्लॉयज विविड इमेजरी एंड सिंबोलिज्म टू कॉन्ट्रास्ट द मिथिकल पोर्ट्रेयल ऑफ द रिवर विथ द ग्रिम रियलिटी फेस्ड बाय द पीपल। ठीक है, ग्रिम रियलिटी फेस्ड बाय द पीपल। द रिवर विच सिम्बोलाइजेज life destruction and renewal is viewed differently by the poets and common people. The use of irony and sarcasm in the poem underscores the poet's criticism of traditional poets' insensitivity. ठीक है, contrast between old and new poets. ठीक है, so one of the most striking aspects of the poem is a juxtaposition of the old poets and the new poets. Ramanujan shows that both groups of poets, despite belonging to different eras, are equally detached from the actual pain and suffering of people affected by floods. The river is seen as a poetic inspiration rather than a force of destruction. Symbolism की बात करते हैं इस poem की। तो the river serves as a powerful symbolism in the poem, while traditional poets see the river as a source of beauty and inspiration. Ramanujan highlights how it also causes immense destruction and loss of life. ठीक है, तो ये जो है इसके सिंबोलिज्म है। सोशल क्रिटिक्स यहाँ से शुरू होता है, सोशल क्रिटिक्स। तो यहाँ से सोशल क्रिटिक्स को जो है देख लेना, लिख लेना। यहाँ से शुरू होता है टोन और स्टाइल इस पोएम का। ठीक है, तो रामानुजन ने जो टोन और स्टाइल इस पोएम में यूज़ किया है उसका जो है डिस्कशन यहाँ पर है, और लास्ट में जो है कंक्लूजन जो है लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पोएम की थीम की बात कर लेते हैं। अभी हमने क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखा जिसमें सिंबोलिज्म, टोन एंड स्टाइल, स्ट्रक्चर और जो है थोड़ा सा थीम भी ऐड होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। और उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का थीम क्या है? तो इस पोएम का थीम, पहला थीम है इन अ डिफरेंस ऑफ पोएट्स। ठीक है, तो ये इसका पहला थीम है इस पोएम का। ठीक है, इस पोएम का सेकंड थीम है ह्यूमन सफरिंग एंड निगलेक्ट। ठीक है, ह्यूमन सफरिंग एंड निगलेक्ट इस पोएम का सेकंड थीम है। और थर्ड थीम है इस पोएम का नेचर एंड इट्स ड्यूलिटी। ठीक है, नेचर एंड इट्स ड्यूलिटी इसका थर्ड थीम है इस पोएम का। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ है क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री जो है ये फोर्थ है थीम है इस पोएम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस एंड डेथ, ठीक है। तो लॉस एंड डेथ ये नेक्स्ट थीम है। और सिक्स थीम है अर्बन वर्सेस रूरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये इसके छठा और सातवां थीम है आयरोनी एंड रियलिटी, ठीक है। तो आयरोनी एंड रियलिटी इसका सेवेंथ थीम है इस पोएम का, और यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाना है।